Assalamu alaikum. Welcome to the course School, Community and Teacher. My name is Qudsiya Fatma. Today we will discuss critical analysis of effective role of school and teacher in Pakistani community. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर ये तीनों कितने इम्पॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए, और ये एक ट्रायंगल बनती है। इस ट्रायंगल में से अगर एक भी चीज़ नामुकम्मल हो तो ये ट्रायंगल अधूरी रह जाती है। When we call it a triangle, it means all the sides are linked with each other. These three sides of triangle are very important for running education systems. The education systems are very smooth and proper if each of the part play its role. इन तीन चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ अपना रोल प्ले नहीं कर रही तो एजुकेशन सिस्टम मुतासिर होगा। अगर स्कूल और कम्युनिटी की हारमनी है मगर टीचर कोऑपरेट नहीं कर रहा, सो वी कैन नॉट हैव गुड रिजल्ट्स इन एजुकेशन। अगर से ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रही होती हैं, सो वी कैन से दैट स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर आर इंडिपेंडेंट पिलर्स ऑफ आवर सोसाइटी. Today we will start our discussion by starting with the definitions of society, school and community. Society is a kind of community. It is a group of individuals involved in persistent social interaction. Societies are characterized by patterns of relationships between individuals who share common culture and are united by a common set of aims and values. School. School is an institution designed to provide learning under the direction of teachers. It follows the system of formal education. Let's see what is community. Community is a social unit such as a group which has commonalities like norms, religion, values, customs, identity. It is a group of people living in the same place with commonalities. रोल ऑफ स्कूल इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन ना सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन राइट है बल्कि मॉडर्न सोसाइटी की एक ज़रूरत भी है। An organized society has clear goals on how to improve education. Likewise, school is a building of establishing the pillar of society. इंडिविजुअल्स की जो बेसिक एकेडमिक नीड्स हैं और जो सोसाइटल नीड्स हैं वो स्कूल में पूरी होती हैं। स्कूल का रोल या स्कूल की इफ़ेक्टिवनेस, इसकी बहुत सी इम्प्लिकेशंस हैं वेरियस कॉन्टेक्ट्स में। स्कूल के रोल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पाकिस्तान बहुत सी कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मटेरियल कंस्ट्रेंट्स जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वेल कंस्ट्रक्टेड एंड वेल फर्निश्ड स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, रिसोर्सेज, वेल डिज़ाइंड करिकुलम, टीचर्स एक्सपीरियंस एंड लार्ज क्लास साइज। मटेरियल कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ कुछ नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं जो कि स्कूल इफ़ेक्टिवनेस और स्कूल की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ क्लियर विजन एंड गोल्स, a conducive learning environment, professional leadership and rights and responsibilities of students. इन तमाम फैक्टर्स की जो एडिक्वेसी है वो स्कूल की इफ़ेक्टिवनेस पे बहुत असरअंदाज होती है। When we say that school represents the future and directs and reforms the society, so what should students know and learn to live productively in an increasingly digital world? And we all know the role of school is to solve the problems of country and community. The whole vision of education, schools and communities work together to shape a sustainable future. Last point is to safe and respectful learning environment. In Pakistani communities, schools should emphasize the learner-centered pedagogy. It means to shift from teacher-centered education to design learning environment that are student-centered.
Second, education for sustainability. It means building healthier communities based on social and biological well-being. Third one is youth leadership, engaging students as leaders in building healthier communities. Next is a relationship between school and community. We all know that education in Pakistan can be roughly divided into three categories. First, public sector, second, private sector, and third, madrasas. Public sector, government institutions, private sector ranging from schools from for the poor to elite, and madrasa education, schools to impart religious education. तो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं जिसकी हमने बात की, ये तो डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा करती हैं और इनमें यूनिफॉर्म करिकुलम भी नहीं है जो कि स्टूडेंट्स को इक्विप करे with the same knowledge, skills and competencies to help them grow into usable and useful members of society. School is a social institution where learning experiences are provided to students to attain the objectives. तो जैसे कि अभी हमने तीनों कैटेगरीज की बात की, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है कि वो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी डिफरेंट होंगे. इट मीन्स कि जो आउटपुट है वो डिफरेंट होगा. School is subsystem of the larger system of society. School directs the society, reforms the society, and ensures the progress of society. If school fails to do it, then society will be stagnant. तो अभी हमने बात की कि अगर स्कूल को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इनमें इम्प्रूव्ड लीडरशिप और स्टाफिंग हो, क्वालिटी लर्निंग हो और जो ओवरऑल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कंडूसिव हो, इसके अलावा करिकुलम भी अपडेटेड हो, तो हम मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं. कम्युनिटी और स्कूल के अंदर जो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फैक्टर की इम्प्रूवमेंट में, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, गवर्निंग बॉडीज़. ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं और इनमें से हर एक की अपनी आइडेंटिटी है और इनमें से अगर कोई एक भी मिस हो रहा हो तो प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग स्कूल के अंदर जो है वो नहीं हो सकती. हु इज़ टीचर? A teacher is a person whose occupation is to instruct the students. टीचर का काम सिर्फ स्कूल तक जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि कम्युनिटी में भी टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कम्युनिटी टीचर को रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है. टीचर्स रोल इज़ टू ट्रांसफ़र नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. तो टीचर का काम नॉलेज और स्किल के डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में बेटर कंट्रीब्यूट कर सकें. In Pakistani community, people think that teaching profession is not so good, and people don't want to become teachers. हम अक्सर सुनते हैं कि वो बाय चांस टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, यानी लोग बताना भी पसंद नहीं करते कि हमने अपनी मर्जी से टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट किया. An important reason for this is the poor salaries of primary and secondary school teachers. Another thing is respect. Teaching profession जिनका होता है, they do not enjoy due respect in Pakistani society, especially teachers of school level. इस तरह पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसमें टीचर का जो स्टेटस है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू स्टेटस ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड सिविल सर्वेंट्स. गुड टीचिंग इज़ व्हाट वी कैन मेक द स्टूडेंट्स डू फॉर हिमसेल्फ. तो अच्छी टीचिंग में टीचर तैयार करता है स्टूडेंट को अपने फ्यूचर के लिए और उसके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करता है जिसकी वजह से वो सोसाइटी में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करता है. पेरेंट्स टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं, स्कूल पे ट्रस्ट करते हैं और अपने बच्चे को टीचर के पास भेजते हैं. पीपल शुड टेक टीचर एज देयर वेल विशर एंड सिंसियर फ्रेंड who cares for their children. So good teaching is what we can make the students do for himself. It is to create an environment in which students can learn most effectively and overcome their shortcomings and hindrances.
So as we have already discussed, the teacher in contemporary society, social status, उसको माशरे में ऐसा मुकाम नहीं दिया जाता कि हर कोई टीचर बनना पसंद करे. It's a position that a person, family or social group occupies in a social system. और ये जो फैक्टर्स हैं जो टीचर के स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ मच वन अर्न्स, जैसे कि अभी हमने सैलरीज की बात की कि टीचर की सैलरी स्पेशली स्कूल टीचर की इतनी कम होती है जिसकी वजह से वो माशरे में अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता जो एक डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी दूसरे ओहदे में जो टीचर से बेहतर है उनको मिलता है. जनरल वर्किंग कंडीशंस, हमारे मुल्क में चूंकि टीचर्स की वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं, अदर देन टीचिंग उनको इस तरह के काम असाइन कर दिए जाते हैं और उनका जो है वो इस तरह से उनको इंगेज किया जाता है जो कि उनकी जॉब से रिलेट नहीं कर रहा होता. एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, इसी तरह जो टीचर्स की जो एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों चीज़ें अच्छी टीचिंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं. सोशल इन्फ्लुएंस, यानी जो टीचर जिस कम्युनिटी का पार्ट है उसमें उसका सोशल जो है वो इन्फ्लुएंस जो अच्छा होना चाहिए जिससे लगे कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का हिस्सा है. द अमाउंट ऑफ मनी स्टेट स्पेंड्स ऑन इट, जैसे कि बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी जो मनी है वो स्पेंड करती है उनके ऊपर, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको ऐसा लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि जो उनका मुआशरे में जो स्टेटस है उसको मेंटेन रखती हैं. टीचर्स रोल कन्फ्लिक्ट्स, आउटसाइड प्रेशर विच अफेक्ट्स टीचिंग. Teaching profession is a demanding job that requires ability to cope with stress. So through basic stress management techniques, teachers can overcome the stress. So the important thing is what is causing the stress. So दो चीज़ें होती हैं, या तो हालात हमारे कंट्रोल में होते हैं या हमारे कंट्रोल में नहीं होते. So when there is control, there may be solutions. सो अपनी जो लिस्ट है, अपना जो जॉब टास्क है, उनको अगर प्रायोरिटाइज कर लिया जाए और उनको टाइमली मुकम्मल कर लिया जाए तो स्ट्रेस से बचा जा सकता है. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हेड्स, कोलीग्स, पीपल्स एंड पेरेंट्स. बी रियलिस्टिक अबाउट goals. If teachers are realistic about their goals, then they will meet the expectations from heads, colleagues, parents and students. School head is responsible for overall leadership and management of the school. तो हेड का एक विजन होता है, एक उसकी इंस्पिरेशन होती है और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है. वो टीचर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है चीज़ों को टैकल करना चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतर सकें. इसी तरह अगर कोलीग्स के साथ टीचर का रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ अगर अच्छा होगा तो जो है उनको अच्छी टिप्स मिलेंगी, फीडबैक मिलेगा कोलीग्स से और ओवरऑल कम्युनिकेशन की वजह से भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बेहतर होगा. इसी तरह टीचर्स गिव द स्टूडेंट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सक्सीड. टीचर को पता है कि स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन है कि मैं कामयाब हूँ, तो टीचर स्टूडेंट के तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करता है, उनको इमीडिएट और टाइमली फीडबैक देता है ताकि वो स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतर सकें. इसी तरह अगर एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मुमकिन है कि टीचर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो वाइडर सोसाइटी में एक्सेप्ट ना की जा रही हों या ज़्यादा सपोर्ट ना की जा रही हों. The reason is that social values differs from individual value. An individual value is enjoyed by the individual, which a man seeks for himself. Even though these values are commonly shared, but they do not become social values. The role of teacher in a positive school community is extremely important since it is the teacher who is the backbone of the education system. The community's perceptions of the teacher affect their perceptions of the school and consequently students' morale. Teachers serve as not only educators but also mentors, role models,
especially in the modern world. Teachers are pivotal to effective and efficient learning. जिस तरह एक स्कूल हेड जो पूरे स्कूल को मैनेज करता है, इसी तरह टीचर लर्निंग वाइज स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है, अपने क्लासरूम को हैंडल करता है एंड हेल्प द स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव लर्नड इन द क्लासरूम. School heads and teachers assume the critical role in building school community links by reaching out to the community. These are assessment questions. Do you think that school community and teacher are sides of a triangle? How they are related with each other? Second question is, how do you interpret role of teacher in community? For any questions and queries, you can email me at kutsia.fatima@ue.edu.pk. Thank you.